देखते ले आइयो माँ शक्ति आचार्य चंद्र कुमार के माँ के 1276 दिन शनिवार तारीख 2 अगस्त 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज आपका जो विषय है वो स्पिरिचुअलिटी एनाटॉमी, आध्यात्मिक शरीर रचना विज्ञान। अब ज्यादा समय तो आदरणीय प्रदीप गुप्ता साहब से निवेदन करते हैं कि आपका क्वेश्चन जाएगा नमस्कार एवरीबॉडी। थैंक यू अरविंद भाई साहब ये मौका देने के लिए। एक्चुअली एक दाई साहब की बुक आई है स्पिरिचुअल एनाटॉमी। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है। डिफरेंट पोज देती है। तो मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा इसको मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में। तो रादर देन माई पुटिंग माई व्यूज आई वुड लाइक टू रीड द चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स। और उसमें यदि कुछ हमें फर्दर डिस्कशन एलोबरेट करना है और समझने की कोशिश करनी तो उसको समझना चाहेंगे। तो मैं बुक रीडिंग से शुरू करूंगा इसे। तो पहला जो इंट्रोडक्शन दाई साहब ने इस बुक में दिया है, दैट स्पिरिचुअल एनाटॉमी इज द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर वेयर द मेन करेक्टर, योर कॉन्शसनेस, undertakes an epic voyage to the source of ultimate reality and steps beyond. For the central role you play in this story, you might call this book as the story of adventure. Your inner adventure, embarking on the adventure means starting down the path to fulfill the incredible opportunity that human life represents. We come from an infinite source, and our soul, the life force within, embodies that endless potential. Your adventure is a journey to actualize that potential. Spiritual anatomy offers an in-depth understanding of the journey of consciousness. It charts a path wherein one can attain levels of consciousness that are usually thought of as unattainable without rigorous practices and extreme levels of sacrifice. Through a simple and natural practice, conditions are created within one's heart that express themselves in the form of the qualities contentment, peace, love, courage, clarity, generosity, and many other qualities blossom in one's being as their journey progresses. Beyond that, what this journey promises is a flowering of a human being to realize the self and become one with the source within this lifetime. The quintessence of nature is simplicity and purity. In your adventure, you come closer to your true nature and arrive at higher and higher levels of simplicity and purity in your consciousness. The process is simple and natural. Aided by a heart-centered meditation at the core of your adventure, you will find that spiritual anatomy is a practical guide with descriptions, maps, tips, and techniques grouped into 3 sections: read and enjoy, do and feel, and meditate and transcend. The chapters in Read and Enjoy explore the significance of spiritual anatomy and the origin of the soul. The section Do and Feel provides an overview of the core heartfulness practicing, explains the characteristics of the chakras, our centers of spiritual energy, and offers guidance to overcoming the limitations on our consciousness. In Meditate and Transcend, you will find an atlas to the chakras to help you preview experiences and conditions that arise throughout your spiritual journey. Over the years, I have received many questions from practitioners worldwide, and a select few appear throughout the following chapters. In addition, I have included a self assessment called the Awareness Atlas. Designed by researchers at Heartfulness, it is a consciousness scale that can serve as a barometer for self growth. While some of the ideas in this book may feel esoteric, there is no reason to take them on blind faith or even belief. Some of you will trust in these ideas because I share them from my experience and direct perception.
What matters most is your own experience. Take a scientific approach and let the evidence of your own experience guide you. After all, spirituality is the science of the soul. After all, spirituality is the science of the soul. Take the information shared here as a hypothesis and test it out in the laboratory of your heart. Let your practice unveil the gifts of higher consciousness that await you. With that in mind, I encourage you to keep a journal to record your meditations, take notes, and jot down any questions or doubts that you may have. Understanding comes from experience, and experience comes from practice. And to practice well, you need more practice. That is where repetition helps. To further support you, a website www.spiritualanatomy.com has been created to house links for online classes, color illustrations, and a forum to share your questions. Most of all, I am here to support you. As spiritual guide of the Heartfulness movement, it is my honor and my duty to accompany the thousands of souls who join us in meditation each day. It would be a joy to share this journey with you and learn from each other. Please write to me at www.spiritualanatomy.com and I can answer your questions. Time is short, the journey is long, and now is the moment. Good luck with your adventure. This is the introduction part. So, this book is in sections. The first section is read and enjoy. That is the philosophy part. First chapter is your inner journey, the key to real transformation. A long time ago, a saint and his disciples showed up at the gates of a kingdom seeking refuge. The guards offered food and water to the guests, while another guard ran to inform the king. When the guard reported, the king thought for a moment and asked for a pot of water. He summoned the guard to take the pot and offer it to the saint. The saint accepted the pot as if he had been waiting for it. He smiled at the guard and asked for a fistful of sugar, which he mixed in water. The saint stirred the water to make sure sugar dissolved, then asked the guard to return the pot of water to the king. The guard, now thoroughly confused, took the pot and raced back to the king. He offered the pot to the king and was about to speak when the king gestured for his silence. The king asked his minister to taste the butter, who sipped and said, "The butter tastes sweet, your highness." A smile appeared on the king's pursed lips. "Guard," he ordered, "usher in the saint and his entourage with the greatest respect." Then he turned to his minister and said, "Please make sure they are offered all comforts for their stay and extend the stay for as long as they need." If, like the soldier, you are wondering, this is what transpired. When the request for refuge reached the king, he sent a pot full of butter to the saint. It was a cryptic message. "We are already at capacity. How shall we accommodate all of you?" To which the saint responded, "Just as the sugar dissolves in the water and merges with it, we too shall integrate into your kingdom and infuse the sweet goodness of virtue and nobility in your people." The king valued the saint's wisdom and knew that the presence of the wise soul would ennoble his people. Within each of us is the same daily struggle between the king and the saint. The king represents the everyday hero, the one who, the one with responsibility, desires, aspirations, problems, wishes, opportunities, constraints, virtues, and vices, all packed into this life. We have so much on our plate that there isn't room for anything more. The saint
and his entourage represents our higher potential, the possibility of purpose, growth, evolution that are knocking at the gate of our attention, ready to enhance our life provided we give them a chance. And we do because deep inside, a voice inspires us to pursue the promise of transformation. The process of sugar dissolving in the water is the story of integration and merger, the highest ideal of our spiritual life. The goal of our spiritual anatomy project is to integrate a fragmented existence by merging with the higher levels of consciousness and achieve our true potential. Now, when I say anatomy, what comes to mind for you? More than likely, you thought of your physical anatomy, possibly vivid images from the high school biology textbook of the blue veins, reddish muscle fibers, and ivory-like bones. Physical anatomy is an integrated system of organs working together. Similarly, mental anatomy is a connected system of consciousness, ego, intellect, and thinking that work together to create our ideas and emotions. Much is written about the physical and mental anatomies and how to nurture them. But there is a third, lesser known system called the spiritual anatomy. When awakened, this subtle energy system of the soul integrates our physical and mental anatomies, making us one with the universal existence and infusing lasting sweetness in our lives. Growth through integration. The word integration comes from the Latin integer meaning whole, intact. When you tend to your spiritual anatomy, you integrate your physical, mental, and spiritual anatomy to function in harmony as a unified whole. With integration, there is consonance between what you feel and what you wholeheartedly express. The heart and mind are aligned, and the alignment creates the circumstances for your growth. Yogic philosophy has a lot to say on the significance of integration. A definition of yoga is samadhi. The words yoga and samadhi have multiple meanings, and a popular definition of yoga is to unite. Samadhi, commonly understood as ecstasy or trance, is a much grander idea. Samadhi means the state that prevailed before creation came into existence, and that was a state of absolute balance, a state of oneness. So, yoga is samadhi, conveys a state of inner integration where everything is in balance, order, and harmony, resembling the state before creation. Imagine yourself in that state of absolute balance. What could you achieve? For a moment, consider the opposite, a state of entropy and imbalance where lacking peace, the mind is distracted, and eventually our life is disjointed and fragmented. Contrast with a state of integration and balance and how that could transform our life. Growth by integration is a journey in which we incrementally ascend towards states of consciousness. It is like a long expedition with camps for rest and reflection. During these resting moments, we acclimatize to the surroundings and integrate with the environment before proceeding onward. Consolidating what we gathered, as we ascend, our spiritual vision expands from mundane to the magnificent. This will take time, but interest and effort speed the process. I refer to this grand journey as the Spiritual Anatomy Project. In Sanskrit, yatra is sacred journey to the center within and you, to the center within. And you, the traveler, are the Abhyasi, the one who practices. I also use the words
aspirant and practitioner for the Abhyasi. No one can force you on the yatra or compel you to meditate. It is a willful undertaking inspired by the heart. What when you do, the heart sets out to speak to you, and you will learn to master the exceptional ability to listen and then muster the courage to abide by the heart's innate wisdom. The language of the heart is inspiration. When you meditate on the heart, its inspiration flows through your consciousness, creating ennobling thoughts. What if consciousness is blocked with prejudice and bias, the spiritual poisons? The heart's inspirations cannot achieve their true potential. Think of the mineral kimberlite gushing up from deep in the earth's core, cutting through the earth's layers. If its path is blocked, it loses speed and gets stuck. But when rising unhindered, kimberlite can furnish a diamond. Think of all the year-end resolutions, commitments, unexecuted promises blamed on willpower, a lack of resolve, and a ruinous habit of judging oneself weak. What we don't realize is that the blocks in our consciousness frustrate our thinking and stall our resolve. Through the gift of meditation, those blocks can be removed. When you start your yatra, your spiritual anatomy project, you begin unblocking your consciousness. As a result, the heart's impulses flow more freely, inspiring feelings that create positive thoughts of growth and change. Your thoughts are the mind's feedback to explain, interpret, and rationalize your feelings. Your thoughts are the mind's feedback to explain, interpret, and rationalize your feelings. For example, when you feel upset after receiving criticism, your thoughts help you rationalize it by thinking, I am hurt because I put in a lot of effort and expected praise. Similarly, when you are excited about a vacation, your thoughts can interpret this emotion by saying, I am thrilled because I need a break and have been looking forward to exploring a new place. In both cases, your thoughts provide cognitive feedback to explain and interpret your feelings. In both cases, your thoughts provide cognitive feedback to explain and interpret your feelings. Feeling is the cause, thought is the effect, and action is the result. Feeling is the cause, thought is the effect, and action is the result. I think, therefore I am, is preceded by I feel, therefore I think. Fully it becomes I feel, therefore I think, therefore I am. Your spiritual anatomy project works from the center to the circumference. You don't simply change on the outside, you transform from within. What happens when there is real inner transformation? Instead of seeing a glass as half full or half empty, you see the possibility of the glass designed for twice the capacity. अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि हम आधा गिलास भरा हुआ देखते हैं, आधा गिलास खाली देखते हैं. तो नया पर्सपेक्टिव है. इंस्टेड ऑफ सीइंग ए ग्लास एज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, यू सी द पॉसिबिलिटी of the glass designed for twice the capacity. Now, perspectives emerge. Your field of action expands. You perform growth oriented actions that feel good, encourage you, and create more inspired feelings. Let's revisit the sequence. Revisit the sequence. Inspiration from within. Change your feelings. Change your thinking. Change your action. सीक्वेंस जो हमारी काम करती है वो इस तरह से है. इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन,
your feelings, change your thinking, change your actions. As your consciousness is unblocked and evolves, you create a virtuous loop of inspired feelings, stoking positive thought, resulting in purposeful action, a transformation engine. When this engine starts revving, you arrive at a new awareness that makes you realize a conscious purpose and meaning in life, and you work toward the end. You no longer resist life experiences. Instead, you imbibe the lessons from the roadblocks you face. The result of such a transformation is happiness. 4. Perhaps the first time in your life, you experience happiness that is no longer conditional, that doesn't demand a material incentive. Your happiness is a settled and centered state of being. When you arrive into this happiness, you realize the elementary difference between happiness and pleasure, the McNugget variant of happiness. Nothing amiss with pleasure. We dine at fine restaurants, delight in the company of friends, enjoy a vacation, all of which bring temporary joy to our lives. We like pleasure, sometimes quite a lot, but we crave happiness. Discovering the conscious experience of lasting happiness is an early step in journey towards integration. You soon discover the mechanism of inner peace, compassion, and joy, leading to sublime levels of happiness of extraordinary worth. Because that kind of inner peace is sustainable. What I am sharing here is a matter of experience, and you can witness it in your own journey in a short period of time. Such are the results you get from working on your spiritual anatomy. You may be glad to know that the evidence of science and the wisdom of meditation point to the same truth. You may be glad to know that the evidence of science and the wisdom of meditation point to the same truth. In her book, The Awakened Brain, Dr. Miller describes her cutting-edge research on the science of spirituality using MRI studies, genetic research, and epidemiology. About the benefits of working on one's spiritual core, she writes, we begin to live beyond pieces and parts model of identity and a splintered, fragmented view of who we are to one another. We begin to live beyond a piece and parts model of identity and a splintered, fragmented view of who we are to one another. And to cultivate a way of being built on a core awareness of love, interconnection, and the guidance and surprise of life. The journey from the limited idea of individual self to feeling of universal connection. We share with creation to becoming one with creation is the journey of consciousness. In the future, we will see and more that science and spirituality echo the same message. Working on the spiritual anatomy evolves our consciousness. An evolving consciousness infuses greater meaning and purpose into life and helps in achieving our true potential. So, how can you move in the direction? How do you commit to the spiritual anatomy project with the devotion it requires? Answer is willingness and interest are the keys. What is needed from you? A bird needs both its wings to fly straight. To lead a life of growth and purpose, integrate the spiritual and the worldly life by making everyday acts of life spiritual. Infuse your spirit, your heart to everyday acts. Infuse your spirit, your heart into everyday acts.
When you speak, speak from the heart. When you look at someone, look with compassionate eye. When you see a family enjoying a meal, offer a silent prayer for their well-being. When you see people suffering, help. The word is a start of hearts expressing themselves with generosity and nobility. The word is a start of hearts expressing themselves with generosity and nobility. Your spiritual actions are silent, heroic gestures that touch the hearts of others. The Spiritual Anatomy Project starts with you from where you are in life. The Spiritual Anatomy Project starts with you from where you are in life. The responsibilities of family, work, and community are the training ground for love, acceptance, sacrifice, and forgiveness, the foundations for your growth. The responsibilities of family, work, and community are the training ground for love, acceptance, sacrifice, and forgiveness, and foundations for your growth. All you need are willingness and interest. When you practice of your own volition and invest in self transformation, you integrate your life with the energy of your soul. You elevate the role of your heart from a biological pump to the vehicle of consciousness. All you need are willingness and interest. When you practice of your own volition and invest in self transformation, you integrate your life with the energy of your soul. You elevate the role of your heart from a biological pump to the vehicle of consciousness. If you are curious about spiritual anatomy, this book will still serve you well. If you are only interested in the basics of meditation to improve your focus, manage stress, and develop better habits, this book has great resources for you too. This is your project, and you decide the trajectory you want. I am here to help. The journey can be long, and it would be nice to have friends along the way. My life mission is to prepare love-filled hearts blooming as celestial spiritual flowers in the diverse garden of humanity and living fearless, inspired life. This book is a sincere effort to fulfill that mission, and I hope it inspires you to follow the path of realization. इसमें फिर दाजी ने एक अवेयरनेस एटलस दिया है, हाउ टू मेजर अवर कॉन्शियसनेस, हाउ इट इज इवॉल्विंग, तो उसको नाम दिया द अवेयरनेस एटलस. If you want to drive from San Francisco to New York City, the simple instruction to drive east may be enough to get you started. But as you progress on the journey, you require more detailed directions, information about places to stay, scenic spots along the way, and so on. The journey from generic to specific is a natural progression. Similarly, the spiritual journey starts with a general level of self awareness. As our consciousness evolves, our awareness becomes more refined. We develop precision in understanding the nuances of our inner journey. We experience deeper levels of fulfillment and connection. The awareness atlas is a tool for you on the inner journey. Carefully designed by a team of researchers and heartfulness, this set of 23 questions is an aid for self-reflection. I invite you to take this questionnaire now so that you can reflect on your starting place and then return to it once or twice a year as a check on your growing awareness. This may seem in some ways like an opportunity to evaluate yourself, but please think of the questionnaire as a chance to uncover your blind spots. After all, without awareness, we cannot grow. Taking the questionnaire. Find a quiet place to answer these questions. It should not take you more than 10 to 15 minutes.
I recommend recording your answers in a journal. Though a copy of the questionnaire is also available for download at www.spiritualanatomy.com. As you read each statement, reflect on how you have behaved over the past 2 weeks. Rather than whether you agree or disagree with the statement, and place a check mark in the appropriate box. As an example, one question reads, I accept the struggles and lessons in life. You would consider the challenges you have accepted and those that troubled you over the previous 2 weeks. Then select your answer. One note. A few of the questions ask about the wisdom of the heart. The term wisdom of the heart refers to the wisdom that dawns when you rise above the noise of thoughts, desires, judgments, and emotions. Then there is a questionnaire. There are 23 questions. So these questions are in four parts: relationship to others, listening to the heart, connection with the higher self, and acceptance and letting go. Questions are which are to be answered. Relationship to the others. There are five questions. Answer will be never, rarely, occasionally, frequently, almost always, always. तो एक मैप दिया है जिसे मुझे भरना है शुरू में और फिर साल में एक या दो बार। तो उससे मुझे पता पड़ेगा मेरी अवेयरनेस कितनी डेवलप हो रही है। क्वेश्चन इस तरह से रिलेशनशिप टू द अदर्स के बारे में। आई एम रिसेप्टिव टू द फीलिंग्स नीड्स एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स। आई एम रिसेप्टिव टू द नीड्स एंड सफरिंग्स ऑफ द अदर्स। नेवर, रेयरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलवेज। दूसरा क्वेश्चन, आई नोटिस how others react to me at the time of an interaction. I notice how others react to me at the time of an interaction. Never, rarely, occasionally, frequently, almost always. Third, I notice my reactions. पहला क्वेश्चन था दूसरे मुझे मेरे मुझसे कैसे रिएक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। I notice my reactions to others at the time of an interaction. Never, rarely, occasionally, frequently, almost always, always. चौथा है I consider the feelings, needs, joys and sufferings of others. I consider the feelings, needs, joys and suffering of others. And पांचवा है I consider the perspectives of others and learn from them. I consider the perspective of others and learn from them. तो ये पांच क्वेश्चन है रिलेशनशिप टू अदर्स में। तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, दूसरे मुझे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं दूसरों की फीलिंग्स को कितना पढ़ पा रहा हूँ, मैं उनकी पर्सपेक्टिव को कंसिडर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, उनसे सीख पा रहा हूँ नहीं सीख पा रहा हूँ। तो ये कैटलस है जिसे मुझे आंसर करना है, टाइम टू टाइम रिव्यू करना है कि मैं जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट मैंने लिया उसमें मेरी अवेयरनेस में कितना चेंज आ रहा है। देन इसके लिए टूल है लिसनिंग टू द हार्ट, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। इसमें क्वेश्चंस दिए, मैं अपने आप को एसेस कर रहा हूँ, मेरी अपनी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, मेरी कॉन्शियसनेस लेवल क्या है। आई लिसन टू द बीडम ऑफ माई हार्ट, द बीडम दैट अराइजेज व्हेन माई प्री कंसीव नोशंस, डिजायर्स, जजमेंट एंड इमोशंस आर साइलेंट एंड ट्रस्ट व्हाट इट टेल्स मी। आई लिसन टू द बीडम ऑफ हार्ट एंड ट्रस्ट व्हाट इट टेल्स मी। क्या मैं अपने हार्ट की बात को सुनता हूँ। अगला क्वेश्चन है I feel guided in the wisdom of my heart. Almost always, when making decisions and interacting with others, it is easy for me to connect with the wisdom of my heart. क्या जब मैं कोई निर्णय लेता हूँ उससे इंटरेक्ट करता हूँ, क्या मैं अपने हार्ट से कनेक्ट कर पाता हूँ। अगला क्वेश्चन है टू मेक डिसीजंस इन एनी सिचुएशन, माई हार्ट दैट इज इनर विजडम गाइड्स मी फ्रॉम ए प्लेस
बियॉन्ड इमोशन एंड थॉट। क्या मैं अपने विचारों के अनुसार और इमोशन के द्वारा डिसीजन लेता हूँ, या हार्ट से डिसीजन लेता हूँ, हार्ट द्वारा गाइड होता हूँ, इंस्पिरेशन मुझे आती है। देन अगला क्वेश्चन है, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। क्या मैं अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करता हूँ या नहीं करता। देन अगला सेक्शन है, कनेक्शन विद हायर सेल्फ। अपने हायर सेल्फ से कितना मैं कनेक्ट हो पाता हूँ। आई फील सपोर्टेड बाई ए डीपर रियलिटी अंडरलाइंग ऑल ऑफ द क्रिएशन। नेवर, रेयरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई फील दैट आई एम पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेटर देन माई सेल्फ। नेवर, टू, ऑलवेज। 5 ग्रेड है। अगला क्वेश्चन है, आई फील ए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू माई आइडेंटिटी बियॉन्ड माई बॉडीली आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फील दैट माई कॉन्शियसनेस है, तो आई शुड बी अवेयर। तो उसी के बारे में अवेयरनेस टिक कर रहा हूँ। नेवर, रेयरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंसी, ऑलमोस्ट, ऑलवेज। नेक्स्ट अवेयरनेस क्वेश्चन है, आई हैव ए फीलिंग ऑफ वंडर एंड ऑ अबाउट लाइफ। देन अगला क्वेश्चन, आई हैव ए सेंस ऑफ बीइंग वन विद ऑल बीइंग्स इन द यूनिवर्स। क्या मुझे सबसे एकात्म का महसूस होता ही नहीं होती है। आई हैव ए सेंस ऑफ बीइंग वन विद ऑल बीइंग्स इन द यूनिवर्स। देन अगला सेक्शन है, एक्सेप्टेंस एंड लेटिंग गो। मैं कितना चीजों को एक्सेप्ट कर पाता हूँ, और कितना जिन चीजों को मुझे छोड़ना, क्या मैं उनको कितना छोड़ पाता हूँ। ये क्वेश्चन जो मुझे आंसर करने हैं। आई चेयरफुल्ली एम्ब्रेस सिचुएशंस दैट आर हार्ड, अनकंफर्टेबल और चैलेंजिंग। आई चेयरफुल्ली एम्ब्रेस सिचुएशंस दैट आर हार्ड, अनकंफर्टेबल और चैलेंजिंग। अगला अवेयरनेस क्वेश्चन है, आई चेयरफुल्ली अडेप्ट टू लाइफ सर्कमस्टांसेस इन ऑर्डर टू ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आंसर करना अपनी अवेयरनेस के बारे में, आई एम्ब्रेस ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ विद जॉय एज ए अनफोल्ड। क्या मेरे जो अनुभव है लाइफ के, उनको मैं जॉयफुल्ली, जैसे भी वो मेरे सामने करता हूँ, पा रहा हूँ। क्वेश्चन, आई एक्सेप्ट द स्ट्रगल्स एंड लेसन्स इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई यूज माई सेल्फ अवेयरनेस टू रियलाइज I have choices in how to respond to situations. I use my self-awareness to realize I have choices in how to respond to situations. जो मेरे पास चॉइसेस हैं सिचुएशंस को रेस्पॉन्ड करने के लिए, क्या उनके बारे में अवेयर हूं या नहीं हूं। माई अगला क्वेश्चन है, माई इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स रिमेन बैलेंस्ड, स्टेबल, नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन एंड अराउंड मी। माई इमोशंस, feelings and thoughts remain balanced no matter what is going on within and around me. And last question is, as my awareness and consciousness changes, I adapt my behavior in order to be compatible with the changes. As my awareness and consciousness change, I adapt my behavior in order to be compatible with the changes. तो इस क्वेश्चनर को दाई साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑन द आंसर। रिमेंबर, योर रेस्पॉन्सेज आर नॉट गुड और बैड, but rather an opportunity to develop a keener awareness of where you are. If you are as objective as possible, your answer for each question can give you a sense of those areas where you might want to focus attention and grow through your spiritual development. For example, you may notice that you are only occasionally aware of your reactions to others at the time of an interaction. Question number 3. As your journey progresses, you can revisit the questions to see what has changed. You may, for example, find that now you are frequently aware of your reactions at the time of interaction. पहले कभी कभी मुझे पता चलता था, अब मुझे काफी ज्यादा पता चलने लगा रिएक्शंस का। Suggesting a gradual increase in your awareness of others
a sign of the compassion that blossoms naturally through your journey inward. In other cases, your score may decrease over time as you become aware of the deeper meaning of the item at hand. For example, at the start, you might give a score of frequently to question 18. I cheerfully adapt to life circumstances in order to grow. As your journey continues, you might develop a greater appreciation for the need for cheerful acceptance and realize that there is a room for improvement. Thus, the next time you complete these questions, you might score sometimes as occasionally or even rarely, indicating that you now have a greater awareness of subtle but important aspects of your reaction to life circumstances. The going down of scores can also be interpreted as a blending of the branches of a tree laden with a fruit. The more you have grown, the more you yield. The question, the questionnaire and your answers become mile markers on your voyage of consciousness. Every once in a while, return and answer these questions again. How does this help? You may have noticed that when we reread a wisdom book, we discover something we missed before, a new idea, a new concept, or a deeper understanding. The book has not changed. You have. Like that, your entry over time will reflect the distance you have gone in your adventure. तो ये ब्रीफ इसका बुक का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो मैंने पढ़ा अभी। तो इसमें हम चर्चा कर सकते हैं क्या चीज दाई साहब कहना चाह रहे हैं, ये कैसे हम इसको, कितना हम एग्री करते हैं या कितना हमने अपनी लाइफ में इसको महसूस किया है। चलिए आप ही शुरुआत कीजिएगा चर्चा में। यानी आप सब करेंगे चर्चा में हमारे से। नहीं सर, वो दरअसल ही बात दोस्त रीडिंग कर रहे थे, हम्म, तो हम चाहते, हमारी जैसे हम लोग की इच्छा होती है, जैसे हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए वो। और जो बुक हम्म। जिससे पढ़ रहे थे उसका अगर रेफरेंस दे दें, या उसका कहना चाहिए कि फोटो निकाल के खींच के शेयर कर लें PDF फाइल, तो हम लोग भी उस चीज से पूरी तरीके से ठीक है। क्लियर हो जाते। तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर हाँ, दीजिए अपने वर्ड्स में, एक्चुअली भाई, आप लोग कर सकते हैं ठीक सर। है। इसमें जो जो ये बुक बता रही है, जितना मैं समझ पाया हूँ, तो एक्चुअली हम एनाटॉमी की जब बात करते हैं तो जनरली थॉट हमें फिजिकल एनाटॉमी का थॉट आता है। वो सब हम डॉक्टर्स की दुकान पे जाते हैं, कहीं भी डॉक्टर्स की क्लिनिक पे जाते हैं, हमें एनाटॉमी की एक पिक्चर नजर आती है या कोई स्कल्पचर नजर आता है। तो हम जब देखते हैं वो बीन्स नजर आती हैं, मसल्स नजर आती हैं, बोन्स नजर आती हैं, दैट वी आर वेरी क्लियर। जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो हमें वही चीज टैग करती है। जो हम में से वो जो लोग वो ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो जो दूसरा लेवल है हमारी बॉडी का, जो मेंटल लेवल है, उस एनाटॉमी को भी हम विजुलाइज कर पाते हैं कुछ लोग, का या काफी लोग, कि हमारी इमोशंस हैं, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारे कंसेप्शंस हैं, तो उसको भी हम विजुलाइज कर पाते हैं। लेकिन जो तीसरा पार्ट है स्पिरिचुअल एनाटॉमी, उसके बारे में हम ज्यादा लोग परसीव, बहुत ही कम लोग परसीव कर पाते हैं। अगर हम उसके बारे में भी हमें जानकारी हो, बिकॉज स्पिरिचुअल एनाटॉमी इज आल्सो ए मैप। जब हम उससे को भी हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो तीनों एनाटॉमी हमारी, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कोजल बॉडी, तो वो इंटीग्रेट हो जाती हैं। एंड देन फिर हमारी जो इन्वेंचर वर्ड यूज किया दाजी साहब ने, तो उसमें जो हमारी इनर यात्रा है उसको हम लेने के लिए हम इसको स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट वर्ड दिया है बुक में। तो उसको हम अडॉप्ट करने के लिए हम तैयार होते हैं। और उसके लिए इसके बताया, स्पिरिचुअल एनाटॉमी जो है इट इज ए प्रैक्टिकल गाइड, जिसमें डेस्क्रिप्शंस हैं, मैप्स हैं। जैसे हम फिजिकल मैप देखते हैं, उसी तरह से स्पिरिचुअल एनाटॉमी को भी मैप किया जा सकता है, रादर किया गया है। टिप्स हैं, उसकी टेक्निक्स हैं,
और उसको जो है उसको फिर तीन सेक्शंस में इसको ग्रुप किया है। तो एक तो ये है कि हम रीड और एंजॉय करें, या हम डिस्कस करें और उसको एंजॉय करें, हमें अच्छा लगता है, हाँ ये तो है, ये तो है, ये तो है। तो उसके रीड एंड एंजॉय। उसके बाद में जब हम तैयार हो जाते हैं तो फिर डू एंड फील। तो फिर उसके लिए हमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, जिनको हम प्रैक्टिस कर पाए। अगर हम उनको प्रैक्टिस करेंगे तो जो चीज हम पढ़ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी हमारी फीलिंग शुरू हो जाती है। देन फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है, जब हम मेडिटेशन में हम जाना शुरू करते हैं, डीप जाना शुरू करते हैं। देन भी ट्रांसेंड अवर कॉन्शसनेस लेवल, हमारा कॉन्शसनेस इवॉल्व होने लगता है। एंड इट इज एन ओन गोइंग प्रोसेस, जैसे जैसे हम करते जाते हैं हमारी कॉन्शसनेस एक्सपेंड होने लगती है। एंड आई कैन फील इट। और उसको वो मेरे एक्सपीरियंस में आने लगती है। और उसको बताया कि स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ सोल। और तो हम जो सोल की जो वर्किंग है या सोल को कैसे रियलाइज करें, इट इज आल्सो साइंस। और स्पिरिचुअलिटी उस चीज को हमें समझने में सहायता करती है कि सोल कैसे काम करती है और कैसे हैप्पीनेस में इट्स कंडीशन इज हैप्पीनेस। लेकिन उसको मैं कैसे एक्सपीरियंस में लेके आऊं, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को करेंगे तो देन वी कैन अचीव द रिजल्ट। उसमें आगे फिर वो रीडर राइटर बताते हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारी समझ जो आती है वो एक्सपीरियंस से आती है। जब कोई चीज मेरे एक्सपीरियंस में आती है तब मेरी समझ पैदा होती है। जब तक वो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आती उससे पहले भी इट इज द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं केवल। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट नहीं होते। अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होती है जब मैं उसे एक्सपीरियंस करने लगता हूँ डीप डाउन इन माई हार्ट। और एक्सपीरियंस जो आता है मुझे, वो जब मैं उसे प्रैक्टिस करता हूँ तब मुझे एक्सपीरियंस होता है। मैं कितनी भी चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे उसे एक्सपीरियंस करना है तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए अगर मुझे अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इसके लिए एक वेबसाइट है जो आपने बताया कि इसको हम पीडीएफ करके भेज डाल सकते हैं। तो आप वेबसाइट है www.spiritualanatomy.com। उसमें पिक्टोरियल्स भी हैं, कलर्ड पिक्चर्स हैं, और क्वेश्चनेयर भी है जो मैं भी इसे पढ़ रहा था। और इसको जो है मैं कैसे स्पिरिचुअल एनाटॉमी की मैपिंग कैसे है, तो वो सारा उसमें दिया हुआ है। एंड ऑन द पाथ टू अवर स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट, तो हाउ द एक्सपीरियंस अनफोल्ड, हम क्या क्या कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उसको एक्सपीरियंस करते हैं और वो क्यों जरूरी है, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें एग्जाम्पल जो दिया वो ऐसे दिया, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो पहाड़ पे हम एकदम नहीं चढ़ जाते हैं। हम पहले का थोड़ा सा चढ़ते हैं, फिर एक बेस कैंप में हम रुकते हैं। तो वहां पे जो मौसम है और जो उसका एनवायरमेंट है उससे हम अपने आप को एक्लिमेटाइज करते हैं। जब एक्लिमेटाइज हो जाता है फिर हम दोबारा यात्रा शुरू करते हैं, अगले पड़ाव पे जाते हैं, फिर दोबारा चढ़ाई शुरू करते हैं, फिर दूसरे पड़ाव पे रुकते हैं, फिर वहां पे एक्लिमेटाइज होते हैं, वहां पे रुकते हैं, फिर हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं तो हम तीसरे पड़ाव पे जाते हैं, आगे पड़ाव पे। तो इस तरह से हमारा इसी तरह से हमारा जो स्पिरिचुअल लर्निंग प्रोजेक्ट है, जब हम अपना इन्वेंचर चालू करते हैं तो हम डिफरेंट चक्रों के माध्यम से हम गुजरते हैं और उसको एक्लिमेटाइज करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अ, तो एंड द प्रोसेस इज द प्रैक्टिस, दैट वी हैव टू डू इट विद प्रैक्टिस। फिर एक इसमें बहुत अच्छी कहानी उसमें बताई संत की और राजा की, कि संत राजा के यहाँ गए, उसने अपने सत्स्यों के साथ में एक बड़ी उनकी पलटन थी। तो गार्ड को बोला कि आप जो है राजा को जाके बताओ कि हम आए हैं और आपके राज्य में रहना चाहते हैं। राजा बहुत समझदार था। तो जब वो गया तो उन्होंने कुछ सोचा, तो उन्होंने एक बर्तन दिया उससे जो पानी से पूरा भरा हुआ था। कहा कुछ नहीं, वो कि संत के पास ले जाओ। संत समझ गए कि ये क्या राजा क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने उसमें शुगर मिला दिया। शुगर मिला के उसको बोला अभी इसे राजा के पास ले जाओ। जब राजा को दिया तो राजा समझ गया संत क्या कहना चाहते हैं, तो बड़ा खुश हुआ। तो बोला आप उनको बड़े आदर के साथ लेके आओ, उनको सबको पलटन के साथ, और उनके अपने राज्य में बड़े सारा सम्मान रुकने की जगह दो। तो फिर बाद में वो मंत्री को बताते हैं कि जब मैंने उन्हें भेजा, तो इसमें कहानी में क्या है कि जब मैंने उसे भेजा बर्तन को पानी से भर के, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे राज्य में फुल है कैपेसिटी, मेरे पास जगह नहीं है रुकवाने की। तो संत ने उसे बोला कि आपकी कैपेसिटी तो फुल है, लेकिन हम एक चीनी की तरह हैं जो अपनी नोवल आइडिया से, नोवल एक्शन से आपकी जनता में घुल मिल जाएंगे, और उनको नोबिलिटी और गुडनेस आपके राज्य में बढ़ेगा। तो राजा को बहुत अच्छा लगा, तो उसने उसको बुला के उनको जगह दी। तो उसको रिलेट किया है इस कहानी को हमारे डे टू डे लाइफ से।
हमारी डे टू डे लाइफ में हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है, जो जो हम जीते हैं, वो राजा है, जिसकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डिजायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिसीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, वर्चूज हैं, बाइसेज हैं। सब हमारे जीवन में चलता रहता है। और हमारे जीवन में इतना सब कुछ चलता है कि हमारे पास और किसी और कुछ करने के लिए या स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट के लिए समय ही नहीं है। तो उसके लिए फिर वो जो हमारा सेंट और उसका एंटूरेस जो उसकी पलटन थी, वो हमारी हायर पोटेंशियल है। अगर वो हमारे जीवन में मिल जाए हायर पोटेंशियल, तो हमारे जीवन में पर्पज आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी, इवोल्यूशन आ जाएगा। और वो बस केवल हमारे अटेंशन को जो हमारे अटेंशन सीख करना चाह रहा है, अटेंशन को नोक कर रहा है, और हमारी लाइफ के को एनहांस करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें उसे चांस देना पड़ेगा। और जो हमारी जो अंदर की आवाज है, जो इंस्पिरेशन है, उसको मुझे परस्यू करना पड़ेगा, जिससे मैं ट्रांसफॉर्मेशन का पर्पज अचीव कर पाऊं। तो इसमें कहानी में जो प्रोसेस ऑफ शुगर है, जो डिसॉल्व हुआ वाटर में, ये इंटीग्रेशन की कहानी है, इंटीग्रेशन मर्जर। द हायर आइडियल ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ वो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में उतर जाए। जब मेरा हायर पर्पज ऑफ लाइफ जीवन में उतर जाएगा, तो ऐसे जैसे वो शुगर मेरे जीवन में मिक्स हो गई है। तो मेरा जो गोल ऑफ स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट है, वो यही है कि जो टू इंटीग्रेट फ्रेगमेंटेड एग्जिस्टेंस बाय मर्जिंग विद हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो मेरी अभी फ्रेगमेंटेड लाइफ है, हिस्सों में बटी हुई है, उसको मैं हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो मेरा के साथ में मैं उसे मर्ज कर पाऊं, और अपनी लाइफ के ट्रू पोटेंशियल को मैं अचीव कर पाऊं। इसके लिए तरीका क्या है? तरीका वही है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका करना है? मुझे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो एनाटॉमी है, तीनों एनाटॉमीज को मुझे हार्मोनी में लेके आना है, इंटीग्रेट करना है। फिजिकल और मेंटल तो बहुत सारे लोग इंटीग्रेट कर पाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एनाटॉमी मिसिंग रहती है इंटीग्रेशन में। अगर मैं उसको हार्मोनी में ले आता हूँ, तो लगातार मुझे जो है, जो मैं फील करता हूँ, जो मैं एक्सप्रेस करता हूँ, वो दोनों भी मेरे एक साथ रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। तो मेरा हार्ट और माइंड इंटीग्रेट होकर अलाइंड हो जाते हैं। और जो अलाइनमेंट से मेरे ग्रोथ के लिए सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती हैं। फिर आगे ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि योगा जो फिलोसफी है, वो इंटीग्रेशन को ही बताती है। जब हम योगा कहते हैं, तो योगा का मतलब है योग करना, प्लस प्लस करना। जब दो चीजें जुड़ती हैं, तो वो इंटीग्रेशन। और योगा की एक डेफिनेशन ये भी है कि योगा इज समाधि। समाधि का मतलब है सम प्लस आदि। आदि जो क्रिएशन के पहले जो पोजीशन थी, उसके समान होना। समाधि का जो लिटरल मीनिंग है, जो जब सृष्टि पैदा हुई, उससे पहले जो स्थिति थी, उसके समान होना। इसका जो लिटरल मीनिंग है, उसे समाधि कहते हैं। तो उसके लिए जो हमारी मीनिंग जो कन्वे करता है, वो तब पॉसिबल है जब हमारा इनर इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड इनर के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा, देन एवरीथिंग विल बी इन बैलेंस, ऑर्डर एंड हार्मोनी। तो फिर क्या पोजीशन क्रिएट होगी? इट विल रिजेंबल द स्टेट बिफोर द क्रिएशन, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं था, जहाँ पे कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं था, और एवरीथिंग वाज इन बैलेंस। तो अब इसको समझने के लिए फिर ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एब्सोल्यूट बैलेंस की क्या क्या बात कहना चाहते हैं, और इससे हमें मिलेगा क्या, हम एब्सोल्यूट बैलेंस की पोजीशन में आ गए, तो इसको अगर समझना है, तो इसका उल्टा सोच के देखो कि एक स्टेट ऑफ एंट्रोपी है, जहाँ पे डिके हो रही है मेरी लाइफ स्टाइल, और मेरी लाइफ में इनबैलेंस है, जहाँ पे मेरे मेरे अंदर पीस नहीं है, माइंड मेरा डिस्ट्रैक्टेड है, और हमारी लाइफ जिसकी वजह से डिसजॉइंटेड है, फ्रेगमेंटेड है। अब इसको कंट्रास्ट करो स्टेट ऑफ इंटीग्रेशन से, जहाँ पे हर चीज बैलेंस में है। तो तब मुझे समझ में आएगा मुझे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत क्यों है। ग्रोथ बाय इंटीग्रेशन के लिए ऑथर कहते हैं कि इसको हमें जो है, इंक्रीमेंटली अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट आई स्टार्ट टुडे इट इंक्रीज। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो अगर मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करता हूँ, और ये स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट नाम दिया है दाई साहब ने इसे, तो जब मैं इसे एज ए प्रोजेक्ट लेता हूँ, तो मेरा एनवायरनमेंट के साथ में बाहर की सराउंडिंग्स और इनर सराउंडिंग्स में एक इंटीग्रेशन चालू हो जाता है। और उसको नाम दीजिए स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट। इसमें जो और इसको हमें बिलफुल्ली करना पड़ता है। जब मैं इस प्रोजेक्ट को बिलफुल्ली करता हूँ, तो मैं अपनी हार्ट की भी सुनने लगता हूँ, और जो भी मेरे अंदर से इंस्पिरेशन आती है, उनको मैं सुनना शुरू कर देता हूँ।
और मेरे अंदर साहस भी आता है कि मैं हार्ट की जो इनेट विजडम है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ उसको। क्योंकि लैंग्वेज ऑफ हार्ट इंस्पिरेशन है। तो जब हम हार्ट पे हम मेडिटेट करते हैं तो इंस्पिरेशन जो है मेरी कॉन्शसनेस में फ्लो करने लगती है। और जब वो फ्लो करती है तो मेरे थॉट्स इंप्रूव करने लगते हैं। अगर इसके विपरीत यदि मेरी कॉन्शसनेस ब्लॉक है किसके, अगर मेरे अंदर प्रेजुडिस और बायस है किसी भी विचार को लेकर, मैं प्रेजुडिस हूँ कोई बायस हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस को लेके अपने विचार को लेके या अपने किसी भी लाइफ स्पेयर में, तो वो स्पिरिचुअल पॉइजन उसको बताते हैं। तो जो हार्ट की इंस्पिरेशन हैं वो जो मेरी ट्रू ट्रू पोटेंशियल है उसको मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि देर आर कॉन्शसनेस में ब्लॉक्स है। तो आई हैव टू मेक माई कॉन्शसनेस क्लियर, प्योर एंड सिंपल। उसके लिए एग्जाम्पल दिया किम्बरलाइट का। किम्बरलाइट जमीन से नीचे से ऊपर बढ़ना, जो पत्थर है जो ऊपर को आता है, और जब वो आता है तो उससे डायमंड निकलता है। लेकिन यदि रास्ते में रुकावट है तो वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा, डायमंड चमक ही नहीं पाएगा। तो उसको फर्दर उसको एक्सप्लेन किया ऑथर ने कि हम ईयर एंड पे हर साल या न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं। और लेकिन वो ज्यादातर कमिटमेंट्स और रेजोल्यूशन हमारे अनएग्जीक्यूटेड रह जाते हैं। और फिर हम उसको ब्लेम करते हैं कि हमारी विल पावर में शायद कमी रह गई। तो ये हमारी रूइनस हैबिट है। और हम उसको अपने अपने को वीक मान के उसको खारिज कर देते हैं। लेकिन हम ये चीज रियलाइज नहीं कर पाते कि हम कमजोर नहीं है। और ये रादर ये हमारी कॉन्शसनेस में ब्लॉक्स हैं जिसने हमारी थिंकिंग को फ्रस्ट्रेट किया। और जो रिजोल्यूशन हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जिसकी वजह से हम उसको रिजोल्व नहीं कर पाए। तो जरूरत इस बात की है कि जो मेरे कॉन्शसनेस में ब्लॉक्स है उनको मैं हटाऊं। और उसके लिए तरीका है मेडिटेशन। तो इसके लिए फिर फर्दर वो बताते हैं जो हमारे विचार हैं, हम जो भी काम करते हैं विचारों के माध्यम से करते हैं। ये हम समझते हैं पहले विचार आता है और विचारों के अनुसार काम करते हैं। और माइंड, लेकिन उसको फर्दर ऑथर बताता है कि थॉट्स जो है हमारे वो माइंड का फीडबैक है जो एक्सप्लेन करता है हमारी फीलिंग्स। पहले फीलिंग्स आती हैं, हार्ट से डायरेक्शन आती है, वो फिर विचार में, विचार जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। माइंड जो है तो कन्वर्ट करता है विचारों के रूप में, एंड फिर वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो वी कैन से दैट इट इज अ कॉग्निटिव फीडबैक टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट अवर फीलिंग्स। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि फीलिंग इज अ कोज, पहले फीलिंग है जो कोज है, थॉट इज अ इफेक्ट, उसकी वजह से थॉट्स आते हैं, और उससे फिर हमारा एक्शन, एक्शन इज अ रिजल्ट। अगर पूरी पूरी सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस इस तरह से बनती है। मुझे हार्ट से इंस्पिरेशन आती है जो मेरी फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब उसके बाद में मेरी फीलिंग्स मेरी थिंकिंग को चेंज करती हैं, और जो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग व्हाट एवर इट मे बी, एंड उसी से मेरे एक्शंस आते हैं, एक्शंस चेंज होते हैं। तो आई हैव टू वर्क ऑन माई इंस्पिरेशन थ्रू द मेडिटेशन ऑन द हार्ट। जब मेरा अ, ये कॉन्शसनेस मेरी अनब्लॉक होती है, रिवॉल्व होती है, तो एक अंदर से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, इनर टू आउटसाइड। जनरली हम गलती क्या करते हैं, बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं, बाहर से बदलना चालू करना चाहते हैं। लेकिन जबकि प्रोसेस का ट्रू प्रोसेस है कि मैं अंदर से बदलना चालू हूँ। अगर एंड इनसाइड आउट, जब मैं अंदर से बदलना चालू होता हूँ तो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चालू होता है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन द हैप्पीनेस। एंड हैप्पीनेस शुड बी ऑफ परमानेंट नेचर, नोट ऑफ कंडीशनल और टेम्परेरी नेचर, कंडीशनड बाय द आउटर सर्कमस्टेंसी। मेरी मेरी हैप्पीनेस मेरे किसी दोस्त या फैमिली मेंबर या मेरे व्यापार या मेरी फैमिली लाइफ उन पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी माय इनर स्टेट, आई एम हैप्पी इन एनी कंडीशन। एंड इसके लिए जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म है द इनर इनर जर्नी, जिसको ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं। ऑथर इसमें मेडिकल रिसर्च पेपर को भी हवाला दिया है कि एविडेंस ऑफ साइंस एंड एविडेंस ऑफ मेडिटेशन पॉइंट टू द सेम ट्रूथ। एक ही बात जो लेटेस्ट रिसर्च ये आ रहे हैं एक ही बात कह रहे हैं। उसमें बुक का जो रेफरेंस दिया है अवेकन ब्रेन, इसमें डॉक्टर लीसा मिलर ने ये रिसर्च किया है अमेरिका में। उसमें उन्होंने जो साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी को प्रूव करने के लिए ये स्टडी की, उसमें एमआरआई स्टडीज को देखा, जेनेटिक रिसर्च को देखा, और एपिडेमियोलॉजी को देखा। इन पैरामीटर्स को इनको स्टडी किया।
तो उन्होंने उसको पाया कि जो हमारी फ्रेगमेंटेड लाइफ है, जो पीस एंड पार्ट्स में बटी हुई है, तो उसको यदि स्पिरिचुअल जिन लोगों ने प्रैक्टिस की थी, तो दे दे सी कुड एस्टेब्लिश दैट देयर वाज अवेयरनेस ऑफ लव, इंटरकनेक्शन, गाइडेंस एंड सरप्राइज इन लाइफ। तो इसके लिए करना क्या है? तो उसके लिए ऑथर एग्जाम्पल देते हैं एक चिड़िया, पक्षी का। पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत है। अगर एक पंख को काट दें तो वो गोल गोल घूमेगा और वो गिर जाएगा। तो इसी तरह से हमें भी जीवन में अगर आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने स्पिरिचुअल और बॉडीली लाइफ, दोनों लाइफ को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अपनी जो एवरीडे लाइफ है उसको स्पिरिचुअलिटी से, जो हमारा इनर एस्पेक्ट है, उससे इन्फ्यूज करना पड़ेगा। अगर मैं अपना स्पिरिट, अपना हार्ट एवरीडे एक्स में आ जाएगा, तो मेरी लाइफ जो है दैट विल बी पर्पजफुल एंड टुवार्ड द हैप्पीनेस। उसके लिए जब हम बोले, एग्जाम्पल दिया, तो हम अपने दिल से बोले। जब हम किसी को देखें तो प्रेम के साथ देखें। और जब हम किसी को भी देखें, मान लो कोई खाना भी खा रहा है, कि इनसे मिलने गए, तो उसके लिए हम साइलेंट प्रेयर करें, जो ये खाना खा रहे हैं इनके शरीर को लगे, इनके आत्मा को लगे और इनकी प्रोग्रेस हो। क्योंकि आज जो हमारे संसार में कमी है, वो जेनरसिटी की, जो हार्ट्स हैं, जो जेनरसिटी को, नोबिलिटी को एक्सप्रेस कर पाए, ऐसे दिल बहुत कम है, ऐसे व्यक्ति। तो स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल एक्शन जो है, दे आर साइलेंट, लेकिन छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो हमारे दुनिया को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट हम में से प्रत्येक से, स्वयं से शुरू होता है, जिसको हमें प्रत्येक को अपनाना पड़ेगा। और जो हमारी परिवार की, काम की, कम्युनिटी की, जो भी हमारे जीवन में हैपन हो रहा है, वो हमारे लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। जो भी हार्डशिप्स आती हैं, जो भी हमारे सामने स्ट्रगल्स आती हैं, वो हमें लव, एक्सेप्टेंस, सेक्रीफाइस करना, फॉरगिव करना, और जो फाउंडेशन है हमारी ग्रोथ की, उसके लिए हमें तैयार करती हैं। इस सब के लिए जरूरत क्या है? बिलिंगनेस और इंटरेस्ट की जरूरत है। और रोल ऑफ योर हार्ट को, अभी ज्यादातर लोग हमें हार्ट को, जब हम हार्ट की बात करते हैं, तो हम बायोलॉजिकल पंप की बात करते हैं, जो बीट कर रहा है, जो मेरे शरीर को ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हम स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट अपने जीवन में उतारते हैं, तो नाउ हार्ट इज फ्रॉम बायोलॉजिकल पंप, इट इज अपग्रेडेड टू व्हीकल ऑफ कॉन्शियसनेस, because heart is the source of inspiration, and it is a vehicle for the evolution of consciousness। और स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है, तो दिस बुक सर्व्स वेल। इसमें दोनों तीनों, जो भी जिस भी मनसा से इस बुक को पढ़ना चाहता है, जिसे बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन सीखने हैं, फोकस को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, बेटर हैबिट डेवलप करने के लिए, तो उसके बारे में ये किताब जानकारी देती है। और हम अपने पेस पे या जिस भी ट्रैजेक्टरी पे हम जाना चाहते हैं, उसमें हम जा सकते हैं। तो सारी इसमें गाइडेंस अवेलेबल है। स्पिरिचुअल एनाटॉमी की मैपिंग है, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। जब हम स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो हमारे जो एक्सपीरियंस है, उसको हम किताब में जो लिखा है, क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, तो दैट इज रिटन इन दिस, हाउ डू आई फील ऑन माई वे टू द स्पिरिचुअल जर्नी। और फिर इसमें जो क्वेश्चनियर दिया, दैट इज अवेयरनेस टेबल टू बी स्टार्ट, दैट इज सजेस्टेड कि हम इसको भरें और देखें कि मैं अभी कैसा, कि मेरा अवेयरनेस, मैं हाउ डू आई फील अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दूसरों के साथ में अपने संबंधों के बारे में, मेरे अपने बारे में क्या धारणा है, मैं अपने हृदय की बात कितना सुनता हूँ, उसके बारे में मेरी आज क्या धारणा है, मैं अपने आंतरिक स्वयं के साथ या हायर सेल्फ के साथ किस तरह से कनेक्टेड फील करता हूँ, उसके बारे में मेरी अपने बारे में क्या धारणा है। और मैं चीजों को, लाइफ सरकमस्टांसिस को या दूसरों के दुख दर्द को कैसे समझता हूँ, या जो दूसरी चीज, जो चीजें मुझे छोड़नी है, उनको मैं अपने छोड़ने के बारे में क्या समझता हूँ, मेरी अपने बारे में क्या धारणा है। तो एक क्वेश्चन दिया, उसको मैं हम फिल करते हैं। और जब हम स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट को अपने जीवन में उतारते हैं, तो उसको फिर हम टाइम टू टाइम टेस्ट करते हैं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, फिर दोबारा उस अवेयरनेस टेबल को भरते हैं। तो जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो मुझे पता पड़ता है कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको मैं डॉक्यूमेंट कर पाता हूँ। और इस अवेयरनेस टेबल में गुड और बैड जैसी कोई बात नहीं है। तो मेरी अवेयरनेस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस का मुझे पता पड़ता है। तो ये, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बुक। देन देर आर अदर, हाउ द सोल केम, व्हाट इज द पोटेंशियल वी हैव टू रियलाइज,
how the soul works, how's the story of soul. So there are so many other philosophical part, then the practice part, then the how to transcend my life and how to transform my life. So that is a full book. So interested, those interested may go through the website www.spiritualanatomy and spiritualanatomy.org. तो उसमें जाके हम उसको फर्दर देख सकते हैं, क्वेश्चनर भी है. तो इट इज ऑल अबाउट any further query about this book or about this topic, I will be happy to answer. तो अभी मैंने देखा था सर, आपने साइट बताई थी, आई वेंट टू दैट साइट, उस पर तीन चार खुल गई. एक स्पिरिचुअल एनाटॉमी मेडिटेशन चक्रास बुक बाय कमलेश डी पटेल. एक है स्पिरिचुअल Yeah, एनाटॉमी it is डायरी the same book. डॉट Yeah, org. हाँ, स्पिरिचुअल एनाटॉमी yeah. मैपिंग योर, उसमें मैपिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू चक्रास, और इसमें पीडीएफ का भी एक दिया हुआ था. हाँ तो ये हाँ. राजी करके वही हार्टफुलनेस वाला है जो आप लेते हैं, जो आपका Yeah, मेडिटेशन. yeah, yeah. और स्पिरिचुअल एनाटॉमी का मुझे लगता है इट इज सिमिलर टू द ऑरा ऑफ ए ह्यूमन बॉडी. उससे कनेक्टेड है ये कि नहीं? क्योंकि हाँ स्पिरिचुअल बिल्कुल. एनाटॉमी से और ही हाँ, सेम चीज है. हाँ ठीक है, ये तो ओरा ओरा वही मैं ओरा इज जानना द चाहता कि रिफ्लेक्ट. ऑलमोस्ट ठीक है. Yeah, थैंक यू aura सर. is the reflection of the light of my anatomy, spiritual anatomy. वही This वही चीज है, उसी चीज को mental उन्होंने and दूसरे spiritual. वर्ड्स में स्पिरिचुअल एनाटॉमी के हिसाब से बता दिया, जिसको हम हम्म. ऑरा के नाम से जानते हैं. हर आदमी का अपना अपना ऑरा होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है. द मोर यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू द हायर अप, द मोर पॉजिटिव योर ऑरा वुड बी. यही चीज We रहता have है. to we have to purify my aura. I have to जी जी. purify my aura. And यस. purpose and base to go inside. Inventure. Inventure is a way. तो एंड दिस इज लाइक द मैप. अगर मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना तो आई विल टेक द मैप एंड आई विल स्टार्ट माई जर्नी. एंड जैसे फिर देन उसको यदि मुझे उसकी फाइनल डिटेल्स भी चाहिए होती है, इट इज नॉट एनफ कि मुझे आई हैव टू गो वेयर. तो दैट इज अ गुड डायरेक्शन टू स्टार्ट विद. लेकिन आई नीड व्हाट आर द वेयर आर द रोड्स, वेयर आर द स्टेइंग प्लेसेस, वेयर आई विल ईट. तो आई नीड ऑल द इंफॉर्मेशन. और तो दिस बुक प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन. जब हम थ्रू करते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस ही आते हैं, तो आई नीड सम कंफर्मेशन वेदर आई एम राइट और रॉन्ग. तो ये बुक मुझे प्रोवाइड करती है, माई मेरे एक्सपीरियंस को कंफर्म करती है, तो आई आई फील कॉन्फिडेंट दैट आई एम ऑन द राइट पाथ. थैंक यू सर. हम कहीं से भी शुरू करें, एवरेस्ट पे जब मैं चढ़ना शुरू करूंगा, आई मे स्टार्ट फ्रॉम एनी डायरेक्शन. तो बट माई तो आई नीड सम कंफर्मेशन दैट आई एम ऑन द राइट पाथ. चलिए. पर ये सुदीप जी, एक माइंड में एक चीज आ रही थी मेरे, कि राजा को कैसे मालूम पड़ा कि हम्म. वो चीनी मिली हुई है? उसने पी के देखा था कैसे, मतलब? हाँ, पी के देखा ना मैं. हम्म. पिलाया ना मिनिस्टर को, उससे पूछा तो उसने बताया हाँ इट इज स्वीट. तो ओके. इट इज जस्ट टू कन्वे, अब कहानी के अच्छा, माध्यम से कन्वे किया. दूसरा सवाल मेरे एक और है. जैसे आपने आध्यात्मिक बात करी, आज के हम्म. टाइम में 95 या 98% लोग ना रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में लगे रहते हैं. हम्म. जब वहां से निकल नहीं पाते तो यहाँ को कहाँ जाएंगे? मतलब ये थोड़ा सा एक सवाल आता है कई बार. मतलब इस फील्ड में कैसे घुसे, मतलब क्या मतलब? क्योंकि वो तो वही नहीं, क्योंकि 24 घंटे में वो तो वही तिकड़म में लगा हुआ सारा. इसके लिए जरूरी है बिलिंगनेस एंड इंटरेस्ट. सबसे पहले मेरी बिलिंग होनी चाहिए, आई विल ट्राई. हम्म. एंड आई एंड इंटरेस्ट शुड कम फ्रॉम द इनसाइड. अगर मेरे कहने से, किसी के भी कहने से कोई भी नहीं करेगा, तो उसके लिए आई हैव टू प्रैक्टिस, आई हैव टू स्टार्ट माई प्रैक्टिस. जैसे ही जब मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूँ तो समथिंग विल कम इनटू माय एक्सपीरियंस. जैसे ही वो मेरे एक्सपीरियंस में आएगा, उसको गहराने के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा. तो धीरे धीरे, जैसे जो ब्लॉक की बात करें, देर आर ब्लॉक्स इन माई कॉन्सियसनेस. तो इट इज, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, मैं चाहता तो हूँ करना, लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों में फंसा हुआ हूँ और मैं उसे कर नहीं पा रहा, और मैं उसे खारिज कर देता हूँ, भाई ये हो नहीं सकता, या ये मेरी वीकनेस है. तो उसको ऑथर बता रहे हैं कि ये मेरा वीकनेस नहीं है, ये मेरा ब्लॉक्स इन कॉन्शसनेस है. और ब्लॉक्स इन कॉन्शसनेस को हटाने के लिए आई हैव टू स्टार्ट माई प्रैक्टिस. ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर मेरा एंजियोग्राफी करता है, उसके बाद में वो स्टेंट डाल देता है, तो जो ब्लॉक्स है उसको हटा दिया. जब वो ब्लॉक हटेगा तो वो जो है मेरा ब्लड फ्लो होना चालू हो जाएगा. ऐसे ही जब मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा, प्रैक्टिस इज लाइक पुटिंग द स्टेंट. तो जैसे ही ब्लॉक वो हटेगा, जो मेरी हार्ट की इंस्पिरेशंस हैं,
दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू माय कॉन्शियसनेस। जब वो मेरे कॉन्शियसनेस में फ्लो होगी, तो माय थॉट प्रोसेस विल चेंज, it will start evolving, and it is an continuous process. There are multiple blocks it is, and दी जो चक्रा की हम बात करते हैं, तो अगर हम आगे फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे, तो वो ज्यादा तैयारी के साथ मैं आ सकता हूँ। उसमें क्या है, दे चक्राज आर द एनर्जी सेंटर्स ऑफ द सोल। तो दीज आर द एनर्जी सेंटर्स ऑफ सोल। तो वहां पे उसकी एनर्जी, तो जब हम प्रोग्रेस करना चालू करते हैं, वी हैव टू पास थ्रू दोज सेंटर्स, एंड वहां से पास थ्रू करने के लिए वी नीड सम हेल्प एंड मेथड्स। तो जो मैं हेल्प है वो गुरु से आती है, और मेथड्स भी गुरु ही देता है, तो नहीं, उसको हमें करना पड़ता है। आप बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर एक इट बार इज ए कोई मैटर ऑफ स्टार्टिंग ओनली। वंस आई नहीं, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट विल कम इन द एक्सपीरियंस। एक बार अगर कोई शुरू हो जाए तो उसके बाद तो कोई उस आनंद की तो कोई वही नहीं होता, क्योंकि उसके बाद तो सब चीजें हो जाती है। पर वो जिस एटमोसफियर में व्यक्ति रहता है ना, तो ज्यादातर उसका छाप उस पर रहती है, मतलब अब उससे निकलना, फिर उसका अलग एक विजन बनाना और धारा के विपरीत चलना, ये बड़ा एक आसान काम नहीं, मतलब ये बड़ा टफ प्रोसेस है। क्यों ना साहब, आप प्रे मेरी बात से सहमत है या नहीं? जब हमारे बस में कुछ ना हो, देन प्रेयर हेल्प्स। हाँ, वो तो है ही। प्रे टू द गॉड दैट सर ईश्वर, मुझे जो हम है लोग कि भी तो सच्ची समय बुद्धि मैं इसको निकाल के शुरू इस कर पाऊँ। प्लेटफॉर्म पे बैठे ही है ना। हाँ। अपने स्पिरिचुअल एनाटॉमी को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसी तरीके से सब अभी कहीं मैं ना एक कहीं चीज पढ़ रहा था, सुन रहा था, मतलब मैंने अभी बल्कि सोचा कि जैसे हम लोग बीमार रहते हैं, ठीक, किसी भी कोई भी बीमारी हो व्हाट्सएवर, हम्म। एक थॉट तो मेरे पास ये आया कि आदमी बीमारी से नहीं मरता, बीमारी को सोच सोच के मरता है। हम्म। एक थॉट ये आया कि कई जगह इसकी जब जीवनी शक्ति मजबूत होती है, जैसे मैंने देखा कि बहुत से पेशेंट आईसीयू के अंदर गए, हम्म। आईसीयू से आने वाले परसेंटेज कम होती है। हम्म। तो यानी कि अगर उसकी जीवनी शक्ति या उसकी जिज्ञासा तेज है, तो वहां से निकल के आ जाएगा। दूसरा हम्म। क्या है कि उसकी जो पॉजिटिव का विचार है या वो चीज है, मतलब जैसे कि वो सुबह उठते ही अगर ये कहे कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, अपने को अचेतन मन को अगर वो कर रहा है, तो वो कमांड कई जगह एक प्रकार से मेडिसिन तो कर रही है अपनी जगह काम, पर उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा पावरफुल कई बार काम करता है। हम्म। हमारा वही सबकॉन्शियस माइंड ना, हम लोग कई बार डिलेमा में रहते हैं। बातें तो करेंगे सब कुछ नहीं, पर सोचते कुछ नहीं ना, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, क्यों? तो बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं नहीं, इसके लिए टूल्स, तो इसी का भी जो अगर हम इसी का हार्टफुलनेस। अभ्यास कर लें, तो मैं समझता हूँ ये जो तरंगों का गेम है, ये अपने अचेतन मन का है। और जो एक फेयर है, हमें डर, हम लोग डरपोक भी हैं कई जगह, किसी बीमारी से डर जाते हैं, कल को भविष्य को लेकर डर जाते हैं, परिवार में कुछ अनिष्ट ना हो जाए उसको लेकर डर जाते हैं। एक डर भी हम लोगों में रहता है, तो वो भी हमारी लाइफ इज द एक गेम बिटवीन लाइफ इज द गेम बिटवीन ग्रीड एंड फियर। ग्रीड, या तो मैं कोई चीज पाना चाहता हूँ, या मैं किसी चीज को खोने का डर है। हम्म। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चलिए नायब साहब, धन्यवाद दीजिएगा, बहुत कुछ हो गया, तब चलते ही और काफी लंबा डिस्कशन हो गया। और रहेगा। ऑफ कोर्स प्रदीप गुप्ता जी जब लाते हैं हार्टफुलनेस, इनका एक मेन सब्जेक्ट है जिसपे डिफरेंट उसकी ब्रांचेस है, उसमें नई नई चीजें लेके आते हैं। आज उन्होंने स्पिरिचुअल एनाटॉमी के ऊपर बताया। ही स्टार्टेड विद द फिजिकल एनाटॉमी, और फिजिकल एनाटॉमी में उन्होंने कलर्स बताया कि कैसे ब्लू कलर की कौन सी आर्टरीज, और वो रेड कलर के बताते हैं मांसपेश का, और फिर बोन्स का कलर आइवरी बताया था। मतलब हम लोग सुन रहे थे उस चीज को। उसके बाद ही केम टू दा कि कहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल एनाटॉमी क्या होती है। तो मेरे को वही धीरे धीरे भी समझ में ये आ रहा था, इज टॉकिंग अबाउट द ऑरा ऑफ ह्यूमन बॉडी। बस उसके है कि जितना हम लोग उस कॉन्शियसनेस में बढ़ते जाएंगे, कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, ईश्वर की तरफ जितनी लगाते जाएंगे, उतनी हमारी स्पिरिचुअल एनाटॉमी का जो है मजबूती आती है। जैसे होता है ना, एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर हष्ट पुष्ट होता है, जिम में जाते हैं तो शरीर तगड़ा होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, मांस में जब मसल्स बनती हैं वो मजबूत हो जाती हैं, थोड़ा सा बल आ रहा है शरीर में। उसी तरह से हम जितना ईश्वर के प्रति, अपने जनन चक्रास की बात भी है, जितना हम ईश्वर के प्रति भक्ति या उस कॉन्शियसनेस की तरफ हम भी बढ़ेंगे, उतनी हमारी स्पिरिचुअल एनाटॉमी भी बढ़ेगी। और जब स्पिरिचुअल एनाटॉमी मजबूत होगी, तो वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द वर्ल्ड विच इज बियॉन्ड टू ए कॉमन मैन।
इसे कहा जाए। और हम लोग अपने कॉन्शियसनेस को बहुत ज्यादा उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, चीजें क्या हो रही, कैसे हो रही, उसका रीजन क्या है, कैसे नहीं है, और उसमें हाउ टू करेक्ट इट, ये भी चीज है। तो जो चीजें एक आम आदमी की समझ में नहीं आती, जिसका स्पिरिचुअल नॉट मी सर स्पिरिचुअलिज्म से कह लीजिए या और जिसका कह लीजिए मजबूत होगा सर, तो उसके लिए कई चीजें बड़ी संभव हो जाती हैं, चीजों को समझना और उसको सही तरीके से करना और अपने आप को सही रखना। देखिए पूरे समाज में या जो पूरे जीवन में एक चीज रहती है कि अपने आप को किस तरीके से करेक्ट कर रखें, अपने आप को किस तरीके से ठीक ठाक रखें, कैसे अपने चरित्र को, अपने आचरण को, अपनी वाणी को, अपने बातचीत को, अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को कैसे अच्छे से अच्छा बनाएं। हर किताब का, हर स्टडी का, हर फिलॉसफी का मेन मुद्दा यही है। इसी में प्रदीप गुप्ता जी ने आज बहुत डिटेल में बताया और इसका रेखता बताया। उनके आज के उद्बोधन के लिए हम लोग उनको बहुत बहुत कहना चाहिए, धन्यवाद देंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रानी अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रानी प्रदीप गुप्ता जी, आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपके आभारी हैं, जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, अपना सत्य विनम्रता से पेश करें। अपना सत्य विनम्रता से पेश करें, उसे जबरदस्ती किसी पर थोपने की जिद ना करें। मेरे पास मोमबत्ती है, मेरा सत्य है। मेरे पास मोमबत्ती है, मेरा सत्य है। दूसरे के पास दिया है, उसका सत्य है। आकाश में सूरज है, ये सबका सत्य है। आकाश में सूरज है, ये सबका सत्य है। अगर सभी सत्य स्वीकार कर लिए जाएं, तो विवाद की कभी कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। अगर सभी सत्य स्वीकार कर लिए जाएं, तो विवाद की कभी कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। बहुत सुंदर बात सर। सारे विवाद तभी होता है जब हम कहते हैं कि अपना दिया तो मेरे पास है, मुझे इसकी मोमबत्ती भी चाहिए। वहीं से विवाद शुरू होते हैं। सर सूरज के प्रकाश का। उसको कुछ कर नहीं सकते सर। ये 3 बार का क्या कहते हैं। शांति, 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 शांति। सभी को बड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा